What we are going to discuss in this period about the compounds that are formed by reaction between metals and non-metals. If I ask you, metals are what type of elements? During chemical reaction, metal atoms donate electrons or gain electrons, if I ask you? Donate. During chemical reaction, metal atom like sodium, metal atom like magnesium, metal atom like aluminium, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो आप? 281. मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 एटॉमिक नंबर 282. एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283. If I ask you how many electrons are there in the valence shell of sodium? Say 11. How many electrons are there in the valence shell of sodium? Valence shell का मतलब outermost shell 1. मैग्नीशियम का outermost shell में कितना इलेक्ट्रॉन? 2. एल्यूमिनियम का outermost shell में कितना इलेक्ट्रॉन? 3. During chemical reaction, metal atoms donate electrons. सोडियम के पास outermost shell में 1 electron, तो सोडियम atom donates 1 electron and forms sodium ion. Na+ configuration हो जाता है 28. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 282, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम एटॉम donates 2 electron and forms what? Mg2+. Electronic configuration is now 28. Aluminium electronic configuration 283. It donates 3 electron during chemical reaction and forms Al3+. Electronic configuration 28. During chemical reactions, metal atoms donate electron and forms positive ion. Metal atoms donate electron and forms positive ion. लेकिन कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा एटॉम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. मेटल एटॉम का आउटरमोस्ट शेल में either 1, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स, and during chemical reaction that number of electrons are donated. लेकिन क्यों डोनेट करेगा, क्या फायदा होगा डोनेट करके? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 28. मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 28. एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 28. और 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन है पता आपको? कौन सा एलिमेंट का एटॉम का कॉन्फ़िगरेशन 28? Noble gas. Which noble gas? Which noble gas? 28 is the electronic configuration of which noble gas, if I ask you? बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने. Neon. So metal atoms during chemical reactions donate electron and they try to acquire electronic configuration of nearest noble gas. And during that process they form what kind of ion? Positive ion or negative ion? Positive ion. Positive. And thereby metal atoms are called electropositive elements. Metals are electropositive elements. So just look at the point discussed here. Metals are called electropositive elements because during chemical reaction, metal atoms donate electrons to form positive ions, and positive ions are also called cations. And the metal atoms have how many electrons in the outermost shell? 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell. लेकिन क्या आप एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बता सकते हो जिसका आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? Hydrogen. It is hydrogen. Hydrogen, good. Hydrogen is a non-metal that is having only 1 electron in the outermost shell. So metal के बारे में यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ कि metal atoms during chemical reactions donate electron to form positive ion. और इसीलिए metals को बोला जाता है electropositive elements. So have you understood everything about this particular slide? Yes, sir. So I'm moving to another one. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप. So I'm moving to next one. यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया metals are electropositive element और हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेटल एटॉम्स के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए पूछूं, देयर इज एन एलिमेंट X,
उसका एटॉमिक नंबर 17। ये मेटल है या नॉन मेटल आप बता सकते हो उस इंफॉर्मेशन से। अच्छा ये मेटल है कि नहीं वो बता सकते हो कि नहीं, मेटल है या नहीं, इज इट मेटल और नॉन मेटल, या इज इट Non-metal. मेटल और इट इज नॉट मेटल? Non-metal. ये नॉन मेटल, नॉन मेटल का आउटमोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287. 287। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 7. तो यहाँ हम लोग को आराम से पता चल जाता है, इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, इफ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन इजीली डिसाइड वेदर द गिवन एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था थोड़ा देर पहले, सोडियम का सिंबल Na, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, it has one electron in the outermost shell. During chemical reaction it donates electron and forms what? Positive ion Na plus sodium ion. इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो आपको पता है क्या एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है? डू यू नो दैट? क्लास 9 का बात पूछ रहा हूं मैं। एटॉमिक नंबर किस चीज का नंबर होता है, कौन सा पार्टिकल का नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता होगा किसी भी एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है या डिफरेंट? Same. सेम होता है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपको पूछता हूं सोडियम एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 11 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11. 11। और आप लोग जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इक्वल होता है तो टोटल चार्ज विल बी व्हाट? न्यूट्रल, बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जब एक सोडियम एटॉम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 11. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। कौन सा पार्टिकल का नंबर ज्यादा हो गया? Proton. कौन सा पार्टिकल का नंबर ज्यादा हो गया? प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन ज्यादा हो गया? 1. एक प्रोटॉन। 1 proton extra means 1 positive charge extra, because charge of 1 proton is taken as unit positive charge. 2 प्रोटॉन ज्यादा होता तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 प्रोटॉन ज्यादा होता तो 3 पॉजिटिव चार्ज, लाइक दैट। सोडियम एटॉम loses electron and forms sodium ion, forms what? Sodium ion। और वो सोडियम आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लिखने का रीजन क्या है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. और Yes, sir. अगर मैग्नीशियम होता तो 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है मैग्नीशियम का केस में? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एल्यूमिनियम का केस में 3 प्लस क्यों होता है? 3 प्रोटॉन ज्यादा होता है। 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, बिकॉज इट डोनेट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3. 3। सो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव क्यों लिखते हैं हम लोग? Yes, sir. So what is understood till now? If I ask you, metals are electropositive elements or electronegative elements? Electropositive. Positive. Electropositive. Metal atoms have how many electrons in the outermost shell? 1, 2 or 3. 1, 2 or 3. 1, 2 और 3 जनरल बात है वो। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि नॉन मेटल एटॉम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल एटॉम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओके, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25। तो क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाई डू एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? कोई भी एटॉम नोबल गैस को छोड़ के बाकी कोई भी एटॉम रिएक्शन में पार्ट क्यों लेता है? Do you have any idea about that? Why do atoms take part? अक्षत क्या बोल रहे हो? Sir, to form a octet. To form octet or to form duplet, या फिर to acquire electronic configuration of nearest noble gas.
नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। हम लोगों ने देखा था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कौन सा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन में आ गया सब कुछ? नियॉन। ओके, अब क्लोरीन का केस में क्लोरीन एटॉम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाएगा। तो इनके ऊपर 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव चार्ज क्यों लिखा जा रहा है? हैव यू अंडरस्टूड दैट पार्ट? यस सर। इस बार कौन सा पार्टिकल का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा? पहले पॉजिटिव आयन का केस में कौन सा पार्टिकल का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता था? प्रोटॉन्स। इस बार किसका नंबर ज्यादा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। Okay, now look at the explanation here. Non-metals are called electronegative elements because during chemical reactions, non-metal atoms gain electrons to form negative ions, which are also called anions. And non-metal atoms have 5 to 7 electrons in their outermost shell. लेकिन आप जानते हो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन is a non-metal which has only 1 electron in its outermost shell. तो अगर मैं आपको पूछूं मेटल एटॉम्स का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। नॉन मेटल एटॉम्स का आउटरमोस्ट शेल में 5 to 7। 5, 6, 7। एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताओ जिसका आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एक ऐसा नोबल गैस का नाम बताओ जिसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम। ऑक्सीजन। हीलियम नोबल गैस पूछा मैंने, इट इज हीलियम। Have you understood? Metals are electropositive or electronegative? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Electropositive. Non-metals are इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। electronegative. Metal atoms donate electron or gain electrons? donate Non-metal atoms gain electrons. Okay. अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, कि क्लोराइड आयन में नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया। क्लोरीन एटॉम के बारे में आप जानते हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। एटॉमिक नंबर अगर 17 होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होगा, टोटल चार्ज 0 होगा। लेकिन क्लोरीन एटॉम व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन का नंबर तो ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 18। प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा। 18 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, टोटल चार्ज में 1 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड thereby we write like this Cl-. Have you understood? yes sir Okay, so why do atoms take part in chemical reaction if I asked you? To get electric configuration of nearest noble gas. To attain stability, and to attain stability they acquire stability by acquiring electronic configuration of nearest noble gas. Noble gas का configuration stable होता है because noble gases do not take part in chemical reaction. Noble gases do not take part in chemical reaction. Have you understood? So I think you have understood 2 basic points. Metals are electropositive elements and non-metals are electronegative elements. Look at here, a neutral atom, when it loses electron, it forms cation. When it gains electron, it forms anion. A neutral atom becomes an ion either by losing an electron or by gaining an electron. Loss करने से cation, gain करने से anion. Now inert gases, कौन हमको 6 noble gases का नाम, 6 inert gases का नाम एक साथ बता सकता है? Any one of you? 6 noble. बता सकते हैं। ठीक है, समीर बोलो। सर हाइड्रोजन, सर हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। नहीं, बेरिलियम नहीं है। सर रेडॉन, फिर उसके बाद सर सोचना पड़ेगा। ठीक है, चिराग बोलो। चिराग। Sir, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Good. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these are inert gases. These are noble gases. Noble gases को inert gas क्यों बोला जाता है? Inert का मतलब होता है non-reactive. So they do not, these gases do not react with any other element under normal circumstances. So helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, these are noble gases. 6 noble gases. आपको पता है noble gases का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का पोजीशन एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट। कौन सा ग्रुप में?
Group 18. Group 18. Okay. Inert gases have how many electrons in their outermost shell? If I ask you, तो simple answer है 8. लेकिन एक noble gas ऐसा भी है, helium, which has 2 electron in the outermost K shell. Helium का outermost shell ही K shell होता है. K shell का maximum capacity 2. K shell का maximum capacity 2, यानी 2 होने से भी वो completely filled shell है. Having 2 electrons in the outermost K shell is called what? कोई बता सकता है? एक टर्म है इसके लिए. Having 2 electrons in the outermost K shell is called what? Anyone? Having 2 electrons in the outermost K shell is duplet, and having 8 electrons in the outermost shell is octet. 8 electrons in the outermost shell, किसी भी outermost shell K को छोड़ के, K अगर outermost shell होगा तो outermost shell में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8. K अगर outermost shell होगा तो 2, So 2. और बाकी किसी भी shell के लिए outermost shell में कितना इलेक्ट्रॉन? 8. 8. ओके. सर ऑक्टेट किसके लिए होता है? ऑक्टेट बाकी जैसे आप क्लोरीन है, जिसका भी आउटरमोस्ट शेल में के शेल को छोड़ के कोई भी शेल का आउटरमोस्ट शेल होगा तो 8 होगा उसमें स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए. जैसे हम लोग ने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में डिस्कस किया था. सोडियम हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम हैज डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम हैज डोनेटेड 3 इलेक्ट्रॉन. तो उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? 2-8. और 2-8 का मतलब हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ऑक्टेट एक्वायर कर लिया. हैव यू अंडरस्टूड दैट? यस सर. ओके. नाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन. जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? अब तक हम लोग समझ गए कि मेटल एटॉम्स रिएक्शन में पार्ट लेगा तो मेटल एटॉम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा? सर डोनेट. डोनेट. नॉन मेटल एटॉम्स डोनेट करेगा या गेन करेगा? सर गेन. गेन. मेटल एटॉम्स कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? सर कैटायन. कैटायन. नॉन मेटल एटॉम्स कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? एनायन. एनायन. ओके. सो मेटल और नॉन मेटल एटॉम रिएक्शन में पार्ट क्यों लेते हैं? व्हाई दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? टू एक्वायर सर टू गेन स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी कैसे आएगा? किसका सर कॉन्फ़िगरेशन? अपना ऑक्टेट पूरा करके. ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना होगा. किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा? इनर्ट Noble गैसेस. gas. इनर्ट Noble गैस. gas. यही बेसिक कॉन्सेप्ट आज का क्लास का. ठीक है. So just look at here, the metal atoms react with non-metal atoms to form ionic compound. जब metal और non-metal का रिएक्शन होकर जो भी कंपाउंड बनता है उन कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है. आपको एक एग्जांपल यहाँ देता हूं. जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? आप बता सकते हो? NaCl. NaCl. कैसे बनता है ये देखो. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? Neon. नियॉन. नियॉन. क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस? Argon. आर्गन. तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्लोरीन को आर्गन जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 1. 1. और सोडियम को नियॉन जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए? 1. सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड सोडियम विल फॉर्म Na+. सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया एंड क्लोरीन विल फॉर्म क्लोराइड आयन. 1 2 3 4 5 6 7 8. सोडियम आयन बनाएगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन बनेगा. दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन हो गया. और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल टुगेदर फॉर्म व्हाट? NaCl. They will together form NaCl. Have you understood? Yes, Yes, sir. sir. Metal atoms कैसा आयन बनाएगा? Electropositive. पॉजिटिव आयन. नॉन मेटल एटॉम्स कैसा आयन बनाएगा? Negative. इलेक्ट्रोनेगेटिव. During chemical reactions, metal atoms donate electrons to attain the electronic configuration of nearest noble gas and form positive ions, also called cations. On the other hand, non-metal atoms gain electrons to attain the electronic configuration of nearest noble gas to form negative ions, which are called anion.
तो इतना डिस्कशन के बाद ये तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि मेटल एटॉम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा एंड दे विल एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, और नॉन मेटल एटॉम्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा, एनायन बनाएगा एंड एक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। और अगर आपको पूछा जाए मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होने से कैसा कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड? Ionic. Ionic compound. Okay, and about transfer of electrons in case of sodium chloride, I have already explained. Sodium donates electron to form sodium ion, chlorine gains electron to form chloride ion. Now, आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, और noble gases have how many electrons in their outermost shell? 8. और having 8 electron in the outermost shell को क्या टर्म दिया जाता है? Octet. 8. और K shell अगर outermost shell है तो, और वो अगर fully fill up है तो क्या बोलेंगे? Duplet. So we know that noble gases are very stable. क्यों बोला जाता है stable noble gases को? Why noble gases are called stable? So because they don't take place in chemical reaction. Takes part in chemical reaction, except for helium. All other noble gases have 8 electrons, octet, in their outermost shell, and helium on the other hand has 2 electrons in the outermost shell. It is completing the duplet. Its first shell is the outermost shell, K shell, and it cannot have more than 2 electrons. K shell का maximum capacity कितना? 2 electrons. आपको क्लास 9 से याद होगा एक फॉर्मूला 2n स्क्वायर टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल। के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी, एल का मैक्सिमम कैपेसिटी, एम का मैक्सिमम कैपेसिटी, एन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? के का मैक्सिमम कितना? 2। एल का मैक्सिमम 8। एम मैक्सिमम 8। एम का मैक्सिमम Sir, 18. 18। एन का मैक्सिमम 32. लेकिन एल, एम और एन अगर आउटर मोस्ट शेल होता है देन मैक्सिमम कैपेसिटी 8। आउटर मोस्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होता है, अदरवाइज के शेल का मैक्सिमम 2, एल 8, एम 18 एंड 32, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट फॉर अदर शेल्स। So this means that noble gases have completely filled outermost shells. Noble gases का जो outermost shell है fully fill up होता है, क्योंकि outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब it is completely filled up with electron. And about electronic configuration, ये 6 noble gases आप देख सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। These 6 noble gases, और ये 6 noble gases का अगर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पता है आपको? एटॉमिक नंबर तो फर्स्ट 20 का तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 का स्टूडेंट है आप, और नहीं पता तो ये पता कर लेना, अदरवाइज मुश्किल होने वाला है आपको। नेक्स्ट क्लास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर का रिक्वायरमेंट होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। नियॉन, देखो एक टेक्निक बताता हूं मैं, इससे इजी होगा आपको लर्न करना। 2 के साथ 8 प्लस करने से 10 प्लस 8 18, 10 plus 8 18, then plus 18 कितना हो गया? 36 plus 18 54 and plus 32 86. आप देख सकते हो कि पहला का अगर पता है तो आपको क्या करना है, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32, बाकी सबका एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 2 और बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सब बाकी सबके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट? 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So we know that noble gases have stable electronic configuration. Since noble gases do not take part in chemical bonding, in chemical reaction, that means the 8 electrons in the outermost shell represent highly stable electronic configuration.
नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि नोबल गैसेस का जो 8 इलेक्ट्रॉन होना उसके वजह से नोबल गैसेस डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन, इसलिए स्टेबल है. And due to this stable configuration, noble gases have neither tendency to lose nor gain electrons. Noble gases का एटॉम इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता और इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करता. एक तरह का और बॉन्डिंग है, हम लोग डिस्कस करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है. अभी तो मैं सिर्फ मेटल और नॉन मेटल का बात कर रहा हूं. मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होने से मेटल एटॉम डोनेट करेगा, नॉन मेटल एटॉम गेन करेगा. लेकिन देयर इज वन मोर ऑप्शन, शेयरिंग, एक तरह का और बॉन्डिंग. Therefore, they remain as such and exist as monoatomic. Noble gases को monoatomic बोला जाता है. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. आपको क्लास 9 में एटॉमिसिटी मिला था, याद है? एटॉमिसिटी थोड़ा याद आ रहा है? क्लास 9 Yes, sir. 2020 में ही था आप लोग क्लास 9 में. हाँ, 21 का थोड़ा पार्ट भी. तो हाँ सर. एटॉमिसिटी 1, एटॉमिसिटी 1, क्यों एटॉमिसिटी 1? क्योंकि दे एग्जिस्ट इन व्हाट फॉर्म? मोनोएटॉमिक फॉर्म. अगर मैं आपको पूछता हूँ हाइड्रोजन गैस का एटॉमिसिटी क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी डायटोमिक. डायटोमिक. मतलब एटॉमिसिटी 2. एक ऐसा एलिमेंट बोलो जिसका एटॉमिसिटी 3. से एल्यूमिनियम. इट इज एल्यूमिनियम. रॉन्ग है. एटॉमिसिटी 3. Ozone. Ozone. Ozone is the correct answer. Ozone is having atomicity 3. और बहुत था वहां पे. Octaatomic भी था, सल्फर, tetraatomic, phosphorus, like that. Now another question, why do atoms take part in chemical reaction? Atoms of elements other than noble gases, they take part in chemical reaction to attain stability. And they attain stability by acquiring the electronic configuration of nearest noble gas. अब nearest noble gas का configuration में कैसे आएगा? Either by transfer of electrons or by sharing of electrons. Transfer of electron का मतलब होता है loss और gain, and sharing of electron तो sharing करके आपको दिखा दूंगा. मैं एक example दे दूंगा where there is sharing of electron. Sharing होने के बाद atoms noble gas का configuration acquire करेगा. Noble gas का configuration acquire करने से उनको बोला जाता स्टेबिलिटी एक्वायर हो गया. बिकॉज नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट केमिकल बॉन्ड. यहां बॉन्ड वर्ड का मतलब आप समझना फोर्स. फोर्स दैट बाइंड्स एटॉम्स टुगेदर, फोर्स दैट बाइंड्स आयॉन्स टुगेदर. एक ऐसा फोर्स जो एटॉम्स या आयॉन्स को साथ में जोड़ देगा, बाइंड करेगा, तो बन जाएगा कंपाउंड. सो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स between two or more atoms which binds the atoms together to form molecules. या फिर between two or more atoms oblique ions भी दे सकते हो आप, which binds the atoms or ions together to form compounds. ज्यादा proper word होगा to form what? Compounds. Okay? आप मैंने यहाँ जो डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई किया, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है. केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू और मोर एटॉम्स व्हिच बाइंड्स द एटॉम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. अब केमिकल बॉन्ड का दो टाइप होता है. एक है आयोनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक है कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड. तो मैं आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड का जनरल एक आइडिया आपको देता हूं. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. ओके, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन होगा तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में? 1. क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7. सोडियम के पास 1, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. किसको? क्लोरीन को. सोडियम विल फॉर्म Na+ एंड क्लोरीन विल फॉर्म Cl-. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक और आ गया क्लोराइड, एंड दे विल टुगेदर फॉर्म सोडियम क्लोराइड. मतलब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को. क्यों अट्रैक्ट करेगा? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी.
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक तरह का फोर्स होगा। आपको पता है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स? Electrostatic force. गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक तरह का फोर्स जनरेट होगा और दोनों बाइंड हो जाएगा और बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयोनिक बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? Ionic bond and electrovalent bond is a type of chemical bond which is formed by transfer of electrons, especially between metals and non-metal atom. Metal atom electron donate करेगा, non-metal atom electron gain करेगा। Metal atom electron donate करेगा और non-metal atom electron gain करेगा। Have you understood? Yes, sir. Okay. Now covalent bond. Covalent bond क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं शेयरिंग का। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है अगर मैं आपको पूछता हूं? हीलियम। हीलियम। और क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? आर्गन। हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्ट लेगा, किसके जैसा बनना चाहेगा, किसका? हीलियम। हाइड्रोजन को हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 1। और क्लोरीन को आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं था, सोडियम को डोनेट करना था, क्लोरीन को लेना था। यहाँ दोनों को जरूरत है और दोनों का जरूरत फुलफिल करने के लिए दोनों को इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। अब क्लोरीन को पास अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आप क्लोरीन का सर्कल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है शेयरिंग के बाद? 1 ना। और हाइड्रोजन का सर्कल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 2। तो शेयरिंग कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर कितना पेयर? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड? 1 पेयर। और कोवेलेंट बॉन्ड का वैसे 3 टाइप होता है। अगर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हम लोग बोलेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका डिटेल डिस्कशन आपका है कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे ऑन आयनिक बॉन्ड, ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो आई थिंक यू गॉट सम आइडिया। देखो शेयरिंग करने के बाद हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So what are the 2 types of chemical bonding that we are going to discuss in class 10 level? Ionic bond, also called electrovalent bond, और दूसरा covalent bond, also called molecular bond. Covalent bond is also called what? Molecular bond. Have you understood? अब मैं आपको अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होने से आयनिक बॉन्ड। और अगर मैं पूछता हूं आपको नॉन मेटल का रिएक्शन होने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सो आप ये पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, दोनों एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स आर electronegative. If a chemical bond is formed by reaction between metal and metal, मेटल और मेटल तो रिएक्ट भी नहीं करता। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में Ionic bond, और नॉन मेटल के बीच में covalent बॉन्ड। तो अगर मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयोनिक बॉन्ड, डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया 2-3 बार। It is a type of chemical bond which is formed by transfer of electrons between atoms.
And this type of chemical bond is formed between metal and non-metal, between metal and non-metal atoms. So we discussed about definition of ionic bond. और covalent bond जब मैंने एग्जाम्पल समझाया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटॉम्स. कौन सा एटॉम्स? मेटल इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं सर. ना No, सर. sir. सिर्फ नॉन मेटल एटॉम्स. तो कभी भी मेटल अगर इन्वॉल्व है किसी कंपाउंड में, मैं तो देख के डायरेक्ट बता दूंगा. मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं देख के बता सकता हूं कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है. कैसे बताना पॉसिबल है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेटल इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में तो दूसरा वाला नॉन मेटल ही होगा. और मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होने से कैसा बॉन्डिंग? आयनिक. आयनिक. तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है. और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल. तो आपको मैं अगर पूछता हूँ एमोनिया कैसा कंपाउंड होना चाहिए? कोवेलेंट. कोवेलेंट. कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड होगा. कार्बन डाइऑक्साइड कैसा कंपाउंड? कोवेलेंट. वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल. हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. Okay. So covalent bonds are formed by Non-metal Sharing of electrons. sharing of electron. Ionic bonds are formed by. transfer of Transfer of electrons. तो ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा उनको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे कि नहीं? हाँ. हाँ सर. हाँ सर. So look at here, ionic compound. Those chemical compounds which consist of ions are formed by transfer of electrons between metal and non-metal atoms. And examples: sodium chloride, magnesium oxide. These are ionic compounds. कैसे आराम से पता लगा सकते हो कौन सा कंपाउंड आयोनिक है? ऐसा हाँ मेटल देखते हैं. Metals involved. होगा. उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? मेटल. अगर सिर्फ नॉन मेटल इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड. मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. अब मैं आपको एक और टर्म समझाने का कोशिश करता हूं. दैट टर्म इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कौन सा बॉन्ड? Ionic. आयनिक. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? आपने देखा था जब सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होता तो सोडियम एटॉम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था? 1. क्लोरीन एटॉम कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया था? 1. 1. Sodium as atom has donated 1. Chlorine atom has gained 1. Chlorine atom has gained 1. Sodium atom has donated 1. So what is electrovalency? मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन ठीक से सुनना. आपको मिल तो जाएगा, मटेरियल मैंने भेजा है आपको. ओके. What is electrovalency? Electrovalency is the number of electrons. Electrovalency is the number of electrons lost or the number of electrons gained by one atom of an element during electrovalent bond formation. Number of electrons lost or number of electrons gained by one atom. So one atom of sodium has donated how many electrons? 1. 1. One atom of chlorine has gained how many electrons? 1. 1. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? ठीक से सुनना. इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 1. और सोडियम ने पॉजिटिव आयन बनाया इसलिए सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम लोग लिखेंगे +1. क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम लोग लिखेंगे -1. सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी +1, क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी -1. This is electrovalency. Electrovalency is the number of electrons lost or it is the number of electrons gained by one atom of an element during electrovalent bond formation. और आप जो क्लास कर रहे हो, क्लास करने के बाद आप आज या फिर नेक्स्ट क्लास से पहले तक अगर आप मटेरियल या टेक्स्ट बुक को इस टॉपिक को पढ़ोगे तभी आपका दिमाग में सेट होगा. ऐसा नहीं कि आप मेरा क्लास करते रहो और क्लास पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप किसी दिन आपका जमीर जागेगा, उस दिन आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत कुछ भूल जाओगे. ये तो रूल है, रूल ऑफ नेचर. आपका ब्रेन का भी यही रूल है. आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूलोगे.
तो जो क्लास में समझाया जा रहा है वापस उसको एक बार एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा ब्रेन का आपको। तो या तो मटेरियल या टेक्स्ट बुक लेके देखोगे तो ये सब टॉपिक मिलेगा आपको, और इन टॉपिक का आपको बार बार रिवीजन करना होगा। और एक बात और बता देता हूं, सुनना, सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वी हैव डिस्कस्ड। क्या आप लोग अपने आप ट्राई करना चाहोगे फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड? देखो तो दिमाग लगा के, अगर कोशिश करके आप लोग ट्राई करो फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड KCl। जो सबसे पहले 3 स्टूडेंट मुझे इस फोन नंबर में व्हाट्सएप करेंगे उन्हीं का मैं चेक कर पाऊंगा। जो फर्स्ट 3 पोटाशियम क्लोराइड, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 69,001,44808 पे। जो पहला 3 स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट्सएप करेगा फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, स्टेप देख लो तीनों स्टेप में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। पोटाशियम ऐसे लिख के भेजना है? हाँ, पूरा ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया स्क्रीन पे, एग्जैक्टली वैसे। और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर बता देता हूँ मैं 19, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 17। एंड आई एम वेटिंग हियर फॉर योर आंसर। पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन मेरा हो गया, एक बार मैं भेज के, मतलब सर भेज के बता दूं क्या करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, आप मैं बता ही रहा हूँ स्क्रीन पे आपको पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। आपको पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के लिए पोटाशियम लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन पोटाशियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलता है कि एक ही आउटरमोस्ट शेल में इट विल फॉर्म पोटाशियम आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। और ये 288 किसके जैसा हो गया? आर्गन। आर्गन लाइक आप चाहो तो लिख भी सकते हो। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आप चाहो तो एक एलिमेंट के लिए डॉट यूज करो तो दूसरा अलग टाइप का एलिमेंट के लिए क्रॉस यूज कर सकते हो, या दोनों के लिए डॉट भी यूज कर सकते हो। मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि आपका बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया हो। 1 2 3 4 5 6 7। It has 7 electron in the outermost shell. It gains 1 electron and it will form what? It will form क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आयन के लिए इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ता है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट देंगे हम लोग। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th इलेक्ट्रॉन पोटाशियम का आने वाला है, तो वो डॉट भी दे सकते हो आप ये शो करने के लिए। So electronic configuration is 288 and it is like that of argon. अब आप थर्ड स्टेप में पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन दिखाने के लिए K+Cl लिखोगे, और आपको हो सकता है स्कूल में डायरेक्टली थर्ड स्टेप ही समझाएं, ये भी पॉसिबल है। डायरेक्ट भी आप थर्ड स्टेप लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप 3 स्टेप में इसको एक्सप्लेन करो। पहला स्टेप में पॉजिटिव आयन बनते हुए दिखाओ, सेकेंड स्टेप में नेगेटिव आयन बनते हुए दिखाओ, और थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन दिखा दो। तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, इधर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब वापस क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में। सो ये एरो देना मत भूलना, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एक एरो, एंड इट विल फॉर्म व्हाट? पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। आप चाहो तो ये पॉजिटिव बाहर भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, एंड दे विल टुगेदर फॉर्म। सर ब्रैकेट क्यों दिया यहाँ पर आपने? कौन सा केस में? सर Cl के केस में। Cl के केस में इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और वो नेगेटिव चार्ज मिक्सअप हो सकता है, उसको अलग करने के लिए ये हम नहीं दिया एक्चुअली, ये रूल है, तो इसको फॉलो करना होगा हम लोग को। ठीक है सर। तो अगर आपको पूछा जाए इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ पोटाशियम क्या होगा? सर 1 1 प्लस 1। एंड दैट ऑफ क्लोरीन क्या होगा? -1 -1 -1। तो आज का क्लास में हम लोग यहाँ तक ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मटेरियल से एक बार यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग,
मैंने एक टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और साथ में और भी बहुत एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वो नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो अपना।